अस्सलाम वालेकुम। اور بہت بہت مبارکباد پاکستان کے یوم آزادی کی، بھارت کے یوم آزادی کی اور بقرعید کی دلی مبارکباد۔ سدھو بھائی کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ یہاں لندن میں کیا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان دنوں ہمیں ہندوستان پاکستان میں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ ارے صاحب، ایک دن پاکستان کے یوم آزادی کی دعوتیں اڑاتے، دوسرے دن ہندوستان میں طرح طرح کے پکوان کھاتے، اور پھر ایک دن آرام کر کے بقرعید کے گوشت پر ٹوٹ پڑتے۔ سدھو بھائی آپ ہر وقت صرف کھانے کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ نہیں صاحب، پینے کی بھی باتیں کرتا ہوں۔ تو آپ کیا پیتے؟ شربت پیتے؟ جی نہیں، ہاضمے کے لیے سونٹ کا پانی۔ سدھو بھائی، جب آپ جوان تھے تو بہت اچھا لگا آپ کا یہ کہنا، مقرر ارشاد، مقرر ارشاد۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ جوان تھے تو بقرعید کے دن کتنا گوشت کھاتے تھے؟ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ویسے تو بکرا قصائی کو دیکھ کر ڈرتا ہے، مگر ہمارے بکرے مجھے دیکھ کر تھر تھر کانپتے تھے۔ بیچارے۔ کون، بکرے؟ جی نہیں، آپ۔ صرف ایک مرتبہ بقرعید پر ہمارے گھر ایک ایسا بکرا آیا تھا جو مجھے دیکھ کر ڈرا نہیں بلکہ مجھے سینگ مارنے دوڑا۔ اے ہے، پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے اس سے کہا، ابے ہمارا بکرا اور ہم ہی میں ہوں۔ پھر اس نے کیا کیا؟ کہنے لگا، دیکھیے صاحب، تمیز سے بات کیجئے، یہ ابے تبے شریفوں کا شیوا نہیں ہے۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے اس سے کہا، ارے تو کیا یہ سینگ مارنا شریفوں کا شیوا ہے؟ پھر اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا، کیا کروں، میری لات ہی بہت چھوٹی ہے۔ سدھو بھائی، آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ بقرعید کے دن آپ کتنا گوشت کھاتے ہیں؟ ہر گھر میں ایک بکرا ذبح ہوتا تھا، ہمارے گھر 3-4 بکرے ذبح ہوتے تھے۔ معاف کیجئے، ہر قصائی کے گھر یہی ہوتا ہے۔ دیکھیے جناب صدر، میں دیکھی جناب صدر۔ مگر سلطانہ باجی، آپ نے سدھو بھائی کو قصائی کہا، اب آپ معافی مانگیے۔ اچھا ٹھیک ہے عبدی بھائی، میں تمام قصائیوں سے معافی مانگتی ہوں۔ مگر سلطانہ باجی، آپ نے سدھو بھائی کو قصائی کیوں کہا؟ ارے صاحب، اس کا بھی بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ ارے بھائی، آج سننے والوں کے خط نہیں پڑے جائیں گے کیا؟ پڑھیں گے، مگر پہلے ذرا یہ دلچسپ واقعہ تو سن لیں، تو ہمیں بھی سنائیے۔ ارے بھائی، کون سا دلچسپ واقعہ؟ ابھی سناتی ہوں۔ للہ ترس کھائیے۔ کس پر؟ بکروں پر؟ جی نہیں، مجھ پر۔ چلیے کھا لیا۔ کیا ترس؟ کیا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ دلچسپ واقعہ خود سدھو بھائی سنائیے۔ ہیں سدھو بھائی؟ ہاں پروین باجی، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں بے روزگار تھا۔ میرا اور سلطانہ باجی کا ڈبل ایس مرغی خانہ بھی ناکام ہو چکا اور ہم دونوں پریشان تھے۔ ایک روز میں اپنے گھر میں بیٹھا 1 مہینے پرانا اخبار پڑھ رہا تھا۔ کیوں صاحب، 1 مہینے پرانا اخبار کیوں؟ ارے صاحب، نیا اخبار خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ہاں تو اچانک دروازہ کھلا اور سلطانہ باجی داخل ہوئیں۔ ہاں سدھو بھائی، کیا خبر ہے؟ سلطانہ باجی، ایک بہت بڑا سمندری جہاز ڈوب گیا ہے، 700 آدمی مر گئے ہیں۔ ہاں مگر وہ جہاز تو پچھلے مہینے ڈوبا تھا۔ جی ہاں، مگر اب پبلک کے بے حد اصرار پر ایک بار پھر ڈوب گیا ہے۔ اچھا، جی ہاں، کہیے کیسے آنا ہوا؟ آپ نے کوئی کاروبار وغیرہ شروع کرنے کے بارے میں سوچا؟ کیسے سوچوں، دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ تو وہ کب کرے گا؟ جب کوئی کاروبار شروع ہوگا۔ سلطانہ باجی، جی سدھو بھائی۔ آپ ہی کچھ مشورہ دیجئے، آپ نے تو کچھ سوچا ہوگا۔ جی ہاں، سوچا تو ہے۔ کیا؟ جلدی بتائیے۔ دیکھیے سدھو بھائی، بقرعید قریب ہے۔ جی ہاں ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ قربانی کرتے ہیں۔ جی ہاں کرتے ہیں۔ اتنے زیادہ لوگ قربانی کرتے ہیں کہ عید کی صبح قصائیوں کی کمی پڑ جاتی ہے۔ جی ہاں پڑ جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ایسا کریں کہ اس بار آپ میرا جی کہیے۔ دیکھیے سدھو بھائی، ایک بکرا کاٹنے کے 50 روپے ملتے ہیں۔ اب اگر آپ 15 بکرے وہ کریں تو کافی وہ ہو جائے گی نا، میرا مطلب ہے آمدنی۔ میں سمجھا نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ عید کی صبح محلے میں 10-15 بکرے ذبح کر دیجئے، کافی آمدنی ہو جائے گی۔ جی نہیں، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ یعنی آپ چاہتی ہیں کہ میں بکرے کاٹوں؟ جی ہاں۔
ये काम मैंने आज तक नहीं किया, मैं बकरे कैसे काटूंगा? जिस तरह मोहल्ले दारों की मुर्गियां काटते हैं। ठीक है, मुझे वो है वो क्या? मंजूर। बस तो हम महल्ले में वो किए देते हैं। वो क्या? ऐलान। हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सिद्धू भाई आवाज आ रही है? नहीं। इसका मतलब है आवाज आ रही है। हैं? आ जाए वो करे। वो क्या? ऐलान। आता हूँ। जी। ख़वातीन और हजरात, बकरीद मुबारक हो। हमें यकीन है कि आप कुर्बानी करेंगे। मुबारक हो, आप कुर्बानी कीजिए, हम आपकी खिदमत करेंगे। ख़वातीन और हजरात, इस साल हमने आपके लिए ख़ास इंतज़ाम किया है, आप आकर हमसे मुलाकात कीजिए। बकरे को ज़िबा करने के लिए हम अपना आदमी भेज देंगे। हम कुर्बानी के माहिर हैं। हम बेहतरीन गोश्त बनाएंगे। हम आपकी खाल भी अच्छी तरह उतारेंगे। हम हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक कुर्बानी करेंगे। हम आपकी बोटियां बहुत सफाई से काटेंगे। हम वादे के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल कुर्बानी करेंगे। जी हाँ, हम सिर्फ आपकी गर्दन काट कर नहीं जाएंगे। हम गोश्त आपकी मर्जी के मुताबिक बनाएंगे। हम आपका कीमा भी बहुत अच्छा कूटेंगे। आइए आइए, फौरन तशरीफ लाइए और अपनी बुकिंग करा लीजिए। फिर न कहना हमें वो न हुई खबर। क्या कहा? कितने ऑर्डर मिल गए? 110। अरे वाह, मजा आ जाएगा। वाह वाह। फी बकरा 50 रुपए के हिसाब से जरा 50 को 110 से जरा तो दीजिए। नहीं दे सकता। क्यों? मुझे 110 का पहाड़ा नहीं आता। अच्छा तो फिर 110 को 50 से जरा दीजिए। दे दिया। क्या जवाब आया? 5500। अरे वाह वाह, जरा सोचिए तो, हमें 5,500 रुपए की आमदनी होगी, है ना? लेकिन जरा ये सोचिए हाँ। कि 110 बकरे काटने वाला माई का लाल कहाँ से आएगा? हाँ, मगर हमें माई के लाल की नहीं, कसाई के लाल की जरूरत है। घबराइए नहीं, खुदा ने चाहा तो वो भी आ जाएगा। कौन है भाई? शायद कोई और बुकिंग कराने आ गया है। अब कौन आएगा? सारे महल्ले वाले अपना नाम पता लिखवा कर जा चुके हैं। आए है, कहीं दूसरे इलाके के लोग तो नहीं आने लगे? अभी देखता हूँ जाकर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजमेरी है। मैं ऑल साउथ एशिया बुचर्स एसोसिएशन का सदर हूँ। अरे मियाँ अजमेरी, जरा आसान जबान में बात करो और साफ साफ कहो। अरे साहब, मैं इस मोहल्ले के कसाईयों का चौधरी हूँ। हाँ, अब ठीक है, बोलो। अरे साहब, आपने अपनी कुर्बानी की कंपनी खोलकर हम लोगों की रोजी तो खत्म कर दी। जब सारी कुर्बानियां आप कर देंगे तो हमारे आदमी क्या करेंगे? मैं बताती हूँ। जी, आप कौन हैं? मैं SS कुर्बानी कंपनी लिमिटेड की चेयरमैन हूँ। ओह, ये नाम तो पहली बार सुना। ताज्जुब है, SS कुर्बानी कंपनी तो बहुत पुरानी कंपनी है। अच्छा, कब से काम कर रही है आपकी कंपनी? बहुत अरसे से। सबसे पहले हमारी कंपनी ने फिल्म कुर्बानी बनाई थी। अच्छा, जिसमें वो मशहूर गाना था। हाँ, आप जैसा कोई मेरी कंपनी में आए तो बात बन जाए। अरे वाह वाह वाह। तो आप बताइए, हमारी बिरादरी के लिए क्या हुक्म है? यही कि आप जैसा कोई मेरी कंपनी में आए तो बात बन जाए। मैं समझा नहीं। महल्ले के तमाम कसाईयों को दावत है कि वो हमारी कंपनी में आ जाएं। हम उन्हें बकरे की कुर्बानी के 5 रुपए, गाय की कुर्बानी के 10 रुपए और ऊंट की कुर्बानी के 15 रुपए देंगे। मंजूर है? मजबूरी है साहब, मंजूर है। कल ईद की सुबह हमारे सब आदमी आपके पास पहुंच जाएंगे। सलाम अलैकुम।
अरे वाह सिद्धू भाई वाह, आपने तो कमाल कर दिया, वाह वाह। मिलाइए हाथ इसी बात। अरे आप जैसा कोई मेरी कंपनी में आए तो बात बन जाए। फूल चुने हम प्यारे प्यारे, फूल चुने हम प्यारे प्यारे, जिनसे महके बाग हमारे, जिनसे महके बाग हमारे, चमन के ऐसे गुलाब हो वो, गुलाब हो वो, गुलाब हो वो, चमन के ऐसे गुलाब हो वो, गुलाब हो वो, गुलाब हो दूर दूर तक खुशबू फैले, दिलकश हो रंगत, गुलदस्ते में और भी निखरे इन सबकी संगत। दूर दूर तक खुशबू फैले, दिलकश हो रंगत, गुलदस्ते में और भी निखरे इन सबकी संगत। कोना कोना घूमे ऐसे फूल ढूंढे, कोना कोना घूमे ऐसे फूल ढूंढे, जमाने भर में नायाब हो वो, नायाब हो वो, नायाब हो वो, जमाने भर में नायाब हो वो, नायाब हो वो, नायाब हो वो। फूल चुने हम प्यारे प्यारे, फूल चुने हम प्यारे प्यारे, जिनसे महके बाग हमारे, जिनसे महके बाग हमारे, चमन के ऐसे गुलाब हो वो, गुलाब हो वो, गुलाब हो वो, चमन के ऐसे गुलाब हो वो, गुलाब हो वो, गुलाब हो वो। फूल चुने हम प्यारे प्यारे, फूल चुने हम प्यारे प्यारे, फूल चुने हम प्यारे प्यारे, फूल चुने हम। हाँ भाई, योम आज़ादी के मौके पर वतन का ये नगमा मोना गा रही थी। इस गाने की मौसीकी सुहेल राना ने तरतीब दी थी, जो इत्तेफाक से पिछले हफ्ते यहाँ हमारे साथ थे। और आओ अब कुछ मालूमाती बातें। क्या तुम ऐसी किसी चीज़ से वाकिफ़ हो जो कपड़ा भी काट सके, धात को जोड़ सके, आँख का निहायत नाजुक ऑपरेशन कर सके और ज़मीन से चांद तक एक सीधी लकीर खींच सके? वो चीज़ है लेज़र, रोशनी की वो शुआ जिसे दुनिया लेज़र के नाम से जानती है। वैसे तो रोशनी तवानाई के बेशुमार छोटे छोटे ज़र्रों के यकजा होने से बनती है। इन ज़र्रों को हम फोटॉन्स कहते हैं। जब किसी जगह से रोशनी निकलती है तो दरअसल यही फोटॉन्स निकलते हैं जो लहरों की शक्ल में इतनी तेज़ी से सफ़र करते हैं कि पूरी कायनात में उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार किसी और चीज़ की नहीं हो सकती। रोशनी की रफ्तार 2,99,793 किलोमीटर फी सेकंड है। ये रफ्तार मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें दोबारा बताऊंगा ताकि तुम चाहो तो लिख सको। मगर लैंप हो या बल्ब हो या सूरज हो, उससे जो रोशनी निकलती है उसमें तरह तरह की लहरें मिली जुली होती हैं। कोई कहीं जाती है, कोई कहीं। जैसे स्कूल का दरवाज़ा खुले तो सैकड़ों बच्चे निकलकर इधर उधर दौड़ने लगते हैं। लेकिन लेज़र ऐसे लैंप हैं कि जिनसे निकलने वाले सारे तवानाई के ज़र्रे यानी फोटॉन्स बहुत कायदे से चुने होते हैं। उन सब की रफ्तार और उनका रुख बिल्कुल एक जैसा होता है। वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसे चलते हैं जैसे फौज वाले परेड करते हैं। तो जब रोशनी बिखरे बगैर और तितर बितर हुए बगैर सीध में चले तो वो फैली हुई रोशनी के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर होती है। रोशनी की ये शुआ इतनी ताकतवर होती है कि ये कपड़ा या प्लास्टिक काट सकती है, धात को ये पिघला सकती है,
नाजुक ऑपरेशन में पुराने चाकू की बजाय इस शुआ की मदद से शिगाफ दिया जा सकता है, और क्योंकि लेज़र शुआएं बिल्कुल एक सीध में चलती हैं, इनके ज़रिए फासले भी नापे जा सकते हैं। और तुम्हें ये भी बता दें कि लेज़र का लैंप किस चीज़ से बनता है। तुमने अंगूठियों में या जेवर में याकूत का लाल पत्थर शायद देखा होगा। इसी कीमती पत्थर का एक ट्यूब बनाया जाता है और उस ट्यूब के ऊपर तेज़ रोशनी वाला एक और ट्यूब चढ़ाया जाता है, जिसे रोशन किया जाता है तो उसके फोटॉन्स याकूत के ट्यूब में दाखिल होकर अंदर के एटम्स को इस तरह हरकत देते हैं कि वो एटम अपने अक्स से और ज़्यादा ताकतवर फोटॉन्स पैदा करने लगते हैं, और इस तरह याकूत के उस ट्यूब के अंदर से लेज़र शुआ निकलती है। अच्छा, तो मैं तुम्हें रोशनी की रफ्तार अभी बता रहा था, चाहो तो लिख लो। 2,99,793 2,99,793 किलोमीटर फी सेकंड। 2,99,793। और अब तुम्हारी आम मालूमात की आजमाइश। ये 6 सवाल सुनो और इनके जवाब देते जाओ। थोड़ी देर बाद हम तुम्हें इन सवालों के सही जवाब बता देंगे। आज का पहला सवाल यह है कि आगरे के करीब तारीखी शहर फतेहपुर सीकरी किस बादशाह ने आबाद किया था। आज का दूसरा सवाल यह है कि रोहतास नाम के 2 किले हैं। एक रोहतास पाकिस्तान में झेलम के करीब है, दूसरा किला रोहतास कहाँ है। आज का तीसरा सवाल ये है कि वो कौन सा मुगल बादशाह है जिसने हिंदुस्तान पर 2 मरतबा हुकूमत की थी। आज का चौथा सवाल यह है कि हिंदुस्तान का वो कौन सा मुगल बादशाह है जिसकी कब्र काबुल में है। आज का 5वां सवाल यह है कि हिंदुस्तान के किस मुगल बादशाह की हुकूमत काबुल तक फैली हुई थी। और आज का 6वां सवाल यह है कि पेशावर से कलकत्ते तक एक सड़क किस बादशाह ने बनवाई थी। हाँ भाई, सवाल तुमने सुने। अगर तुम तारीख के तालिब इल्म हो तो हमें यकीन है कि तुम्हारे सारे जवाब सही होंगे। लो, तो अब इन सवालों के सही जवाब भी सुन लो। पहले सवाल का जवाब यह है कि तारीखी शहर फतेहपुर सीकरी अकबर ने आबाद किया था। दूसरे सवाल का जवाब यह है कि रोहतास नाम का दूसरा किला हिंदुस्तान की रियासत बिहार में है। तीसरे सवाल का जवाब यह है कि हिंदुस्तान पर 2 मरतबा हुकूमत करने वाला मुगल बादशाह हुमायूं है, जो 1 मरतबा अफगानों से हार कर ईरान चला गया था और फिर वापस आकर दोबारा बादशाह बना था। चौथे सवाल का जवाब यह है कि हिंदुस्तान के जिस मुगल बादशाह का मकबरा काबुल में है वो है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आज के 5वें सवाल का जवाब है कि शहनशाह अकबर की सरहदें काबुल तक फैली हुई थीं। और 6ठे सवाल का जवाब यह है कि पेशावर से कलकत्ते तक 1500 मील लंबी सड़क अफगान बादशाह शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, जो अब जीटी रोड के नाम से मशहूर है। अच्छा भाई, तो ये थे 6 सवाल। हमें उम्मीद है कि तुम्हारे सारे जवाब सही होंगे। अब एक तो खुदा हाफिज कहने का वक्त आ पहुंचा। इसके अलावा हम सब की तरफ से तुम सबको एक बार फिर योम आज़ादी और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद मुबारक सबको ईद मुबारक।